Hello students, how are you all? So let's start with our second session. Before we start this session, let me throw some light on a previous session. In the previous session, we discussed about objective of this subject, then we discussed about the syllabus, then we throw some light on software product, where it consists of the overall processes and phases of software development, software engineering, or about the software product. Now in this particular session we are going to explain about flowchart symbols, flow diagram of application. In that we'll start with system outline chart with consider the example of college payroll system. Yes, so let's start with our unit 1.1, that is flow diagram of application. And in that first we studied discuss for the flowchart symbols. So students, as you know, in a previous session we discussed about flowchart, that what is a flowchart, what is the purpose of flowchart, in which condition you have to draw the flowchart, what it contain, how it execute, how it generate the output. Okay, so फ्लोचार्ट जो है वो हमें ओवरऑल फ्लो जो है प्रोग्राम का वो डिस्प्ले करेगा सीक्वेंशियल मैनर में. यस, सो जो भी प्रोग्राम होगा उसका एग्जीक्यूशन, उसका लॉजिक और उसका आउटपुट तक जो भी सिंबल्स यूज होता है, फॉर एग्जांपल इनपुट के लिए किस तरह का सिंबल यूज होगा, आउटपुट के लिए किस तरह का सिंबल यूज होगा, प्रोसेस के लिए किस तरह से यूज होगा, डेटा स्टोरेज के लिए क्या यूज होगा, कुछ डिस्प्ले कराना है तो क्या यूज होगा. सो दिस आर द सिंबल्स. वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल. इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन मिनिमम 5 डिफरेंट फ्लोचार्ट सिंबल्स. So at that time you have to memorize. Yes, so it's very easy. Like for example, say this is for terminator, this is used for process, decision. Yes, then data, manual input, some display, preparation, subroutine, etc. Okay, so these are, I have more symbols for that. You can even memorize that, you can identify so that you can easily draw the flowchart. Okay, even in the next 1.2, that is the system flowchart, even it is contain different types of flowchart symbols only. So you must aware with these symbols. Later on in this particular subject we have a different types of diagram. Yes, like a UML diagram, DFD. Okay, sorry, system flowcharts. So in that we definitely use these symbols, so you must have knowledge about these symbols. Okay, fine. The next symbols are like connector. The main, what is the main purpose of connector? It indicate the continuity part. Yes, suppose you having a very large pattern flowchart that is not possible to draw in a single page, so rest of the remain part of flowchart is continued with the next part. But with the help of connector is used, वो क्या करेगा कि next previous and next को वो connect करेगा. That symbol is used for that purpose. Okay, अगर आपका डेटा sorted form में है तो this particular symbol will use. Concentrate on my mouse pointer. Okay, or somewhere else you have combined some modules, then this symbol is used, that is for merge. अगर कोई डेटा डेटाबेस से आ रहा है या जा रहा है तो you have to use this database symbol. Yes, okay. So remaining like document, say sometime in your application contain a different types of documents files.
like for example, registration file, attendance file, leave application file, yes, some text deduction files, students files. So if it related to files, Excel file or maybe database file, whatever maybe, so that files are identified by the document, and this document symbol consists of this one. Okay, and this is what used for internal storage. This is the stored data. Okay, so this kind of symbols are definitely used in a flowchart or any particular chart, or you can say system chart. Okay, so this is about the flow chart symbols. Let's move ahead. The next is system outline chart. Mark it, it is very very important. It will definitely ask to the internal exam or external exam. It's very useful. What is system outline chart? 2 mark. Or it like give an example with college payroll system, 7 marks. Okay, so it's very useful, students. Now let us discuss about system outline chart. What it contain exactly. सिस्टम आउटलाइन चार्ट जो है वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है इनपुट्स, files, processes, and output. Means it consists of 4 things. One is inputs, files, processes, and outputs. Next, in a it represent in a tabular form. मतलब ये एक sheet होता है. Later on, the next slide will contain the exact pattern, और वो आपको एग्जाम में भी वैसे ही ड्रॉ करके आना है. अगर आपको पूछा जाता है कि सिस्टम आउटलाइन चार्ट, देन यू हैव टू ड्रॉ द सेट दैट इज इसके पीछे आ रहा है. सो ये एक टेबुलर फॉर्म की सीट है जिसके अंदर आप कोई भी सीक्वेंस में इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स लिख सकते हो, ये सिस्टम के अंदर कितनी फाइल्स आ रही है, या क्या क्या प्रोसेसेस हो रहा है, या सिस्टम क्या आउटपुट जनरेट करके देगा, दैट यू हैव टू पुट. इट हेल्प टू चेकिंग फॉर डुप्लीकेशन एंड इलॉजिकल ऑपरेशंस. अगर कोई इलॉजिकल ऑपरेशन है या बाय मिसिंग कहीं से हमने, बाय मिस्टेक अगर हमने गलत ऑपरेशन मेंशन कर दिया है, तो ये सीट के थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द सिस्टम फ्लोचार्ट विल बी डिस्क्राइब नेक्स्ट must be consistent with the system outline chart. The system flowchart will be described. वो क्या डिस्क्राइब करेगा? जो भी नेक्स्ट होगा वो दैट इज कंसिस्टेंट, मीन्स फिक्स. वो फिक्स है, तो जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कोड है या फ्लो है या मॉड्यूल है या प्रोग्राम है, वो फिक्स्ड होगा और वो वहीं पे रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, नथिंग इज डायनामिक. Okay, so before we learn more about system outline chart, let us discuss for one particular system, that is college payroll system. College payroll system. ये college payroll system क्या है? It is one type of system. System means a system. System means software. Any particular software. Like you all are aware with the hotel management system, hospital management system. Yes, college website. Yes, then medical store system. Like ये है कॉलेज पेरोल सिस्टम. अब ये कॉलेज पेरोल सिस्टम में होता क्या है? अगर कोई भी कॉलेज के अंदर कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि भाई पेरोल सिस्टम, तो वो क्या कंटेन करता है, वो किस तरह से वर्क करेगा? तो वो वर्क करेगा, इट विल कीपिंग द एम्प्लॉय रिकॉर्ड. वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, उसकी डिटेल को मेंटेन करेगा, एम्प्लॉय का जो मस्टर होता है, यस, अटेंडेंस रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, जो मेंटेन करेगा वो होगा. लीव एप्लीकेशंस मेंटेन होगी एम्प्लॉय की. देन नया एम्प्लॉय होगा, उसकी डिटेल्स जो है वो मैनेज होगा. कोई डिडक्शन है जैसे कि टैक्स है, या फिर कोई अदर डिडक्शन है, एम्प्लॉय ने कुछ विड्रॉल किया है, तो उसका भी मैनेजमेंट ये करेगा सॉफ्टवेयर. देन कोई नॉर्म्स है, पैरामीटर्स है, तो वो भी जो है वो कॉलेज पेरोल सिस्टम जो है वो मैनेज करेगा. नाउ ये हो गया बात कॉलेज पेरोल सिस्टम की. ओके, जिसके अंदर एम्प्लॉय का पूरा मैनेजमेंट ये ऑटोमेशन सिस्टम करेगा. ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट कॉलेज पेरोल सिस्टम.
नाउ ये कॉलेज पेरोल सिस्टम जो है उसको हम अब डिस्क्राइब करेंगे सिस्टम आउटलाइन चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले चलो देखते हैं ये सिस्टम आउटलाइन चार्ट किस तरह से दिखता है। Okay, but before we discuss about the chart, let us understand about the inputs. मैंने चार पैरामीटर डिस्कस किया, कौन से इनपुट, प्रोसेसेस, फाइल्स एंड आउटपुट। यस, सो क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कॉलेज पेरोल सिस्टम की, तो उसके अंदर भला क्या क्या इनपुट होगा। तो ऑब्वियसली ये देखो, ये लिस्टिंग आपके सामने है। इसके अंदर इनपुट होगा मस्टर की। मस्टर क्या होता है, एम्प्लॉय का अटेंडेंस, यानी कि एम्प्लॉय वाइज इन टाइम आउट टाइम डेट वाइज। ओके, ताकि एट द एंड ऑफ मंथ ये हमारा सिस्टम जो है उसको एकदम इजी हो जाएगा अगर सैलरी स्लिप जनरेट करना है तो। ठीक है, तो ये हो गया मस्टर, ये एक इनपुट होगा। फिर क्या इनपुट होगा दूसरा, लीव एप्लीकेशन। अगर किसी एम्प्लॉय को लीव चाहिए तो वो लीव एप्लीकेशन सबमिट करेगा, ताकि उसकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज या डेट्स, कौन से डेट्स पे वो अवेलेबल नहीं है या लीव चाहिए, तो उसका मैनेजमेंट भी इस तरह से होगा। तो ये भी इनपुट होगा। तब नेक्स्ट इज न्यू एम्प्लॉय डिटेल। अगर कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन होता है तो उसकी डिटेल भी एज अ इनपुट हमें डालना होगा सिस्टम के अंदर। फिर एरियर्स डिटेल। एरियर्स डिटेल यानी कि अगर कोई डिफरेंस है सैलरी प्रीवियस बैलेंस या नया कुछ अपडेट होता है सैलरी में, प्लस माइनस होता है, तो एरियर्स होता है। वो डिफरेंस अमाउंट को एरियर्स बोलेंगे। तो ये सारी की सारी एरियर्स की डिटेल भी हमें सिस्टम को इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर हो गया डिडक्शन डिटेल्स। कोई भी पर्टिकुलर डिडक्शन लाइक इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, कुछ विड्रॉल है, कुछ लोन है। ठीक है, तो ये सारे के सारी डिडक्शन डिटेल्स जो है वो एम्प्लॉय वाइज हमें सिस्टम के अंदर इनपुट करवाना पड़ेगा। फिर होता है नॉर्म्स एंड पैरामीटर। डेजिग्नेशन हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर है तो उसका नॉर्म्स एंड उसका पैरामीटर रहता है। अगर वो प्यून है तो उसका पैरामीटर होता है और उसका कुछ नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अगर वो कोई कॉलेज में सपोज फॉर एग्जांपल प्रोफेसर है तो उसके लिए उसका रूल्स एंड पैरामीटर सब स्पेसिफिक होता है, तो वो इनपुट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कॉलेज पेरोल सिस्टम के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अब आपको बताइए ये प्रोसेस क्या है। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोसेस, where first you have to put some input, that input are processed and it will generate an output। yes, so let's focus on the process। अब भला कॉलेज पेरोल सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती है। तो प्रिपरेशन ऑफ अटेंडेंस एंड लीव स्टेटमेंट, यस ये प्रोसेस हो गई। प्रिपरेशन ऑफ पेरोल रजिस्टर, यस पेरोल की रजिस्टर के लिए भी एक प्रोसेस हो गई। Prepare bank statements obviously and deduction reports। So these are the list of process that you have to identify and list out inside the system outline chart। समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करेंगे फाइल्स। ना ये फाइल्स क्या है, ये जो फाइल्स होती है ये अलग अलग टाइप के फॉर्म में रहती है, जैसे कि रिपोर्ट फॉर्म में होती है, या आप बोले हो कि एक्सेल फाइल में हो सकती है, वर्ड फाइल में हो सकती है। फाइल्स का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। ये फाइल्स जो है, अब ये फाइल्स का मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉय मास्टर फाइल जो है, ये एम्प्लॉय मास्टर फाइल है, इट कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉय मास्टर फाइल जो है वो क्या करेगा, वो सारे के सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स कंटेन करेगा। फिर अटेंडेंस फाइल क्या कंटेन करेगा, तो वो जो है एम्प्लॉय का अटेंडेंस मेंटेन करेगा। लीव रिकॉर्ड है तो एम्प्लॉय ने का लीव जो है वो मैनेज करेगा, कितना लीव लिया है, कितना पेंडिंग है। ठीक है, कौन से टाइप का लीव है, लाइक CL है, EL है, SL है, PL है, एक्सेट्रा। फाइन, देन लीव समरी फाइल्स, then arrears file, deduction summary file and current payroll file। so ये सारी की सारी फाइल्स जो है वो बनने वाली है या बन चुकी है, तो उसे यूज करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट इज आउटपुट एंड आउटपुट। पहले तो आउटपुट को समझते हैं, ये आउटपुट क्या है, सिस्टम क्या आउटपुट जनरेट करने वाला है। यस, किस तरह का आउटपुट जनरेट करने वाला है। तो भाई सिस्टम जनरेट करने वाला है पे स्लिप, देन
payroll register, then deduction reports, then tax reports, okay, management reports, and last is bank statements. Yes. सो स्टूडेंट्स, लेट आई कंसिडर कि आपको इनपुट क्या है, प्रोसेसेस क्या है, फाइल्स क्या है और आउटपुट क्या है वो समझ में आ गया। अब ये चार चीजों को जो है सिस्टम आउटलाइन चार्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इट्स वेरी इजी। उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है, चलो वो फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं। ये देखो, ये फॉर्मेट को आपको मेमोराइज करना है। यू हैव टू मेमोराइज दिस सीट, यस, दिस चार्ट। This chart is divided into several parts because अगर कोई भी कंपनी के अंदर आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे तो पहले इस तरह का चार्ट बनाया जाएगा। जब ये चार्ट बनेगा उसके ऊपर से इजीली पता चल जाएगा कि भाई लिस्ट ऑफ इनपुट्स क्या होने वाले हैं इसके अंदर, मेजर मेजर प्रोसेस क्या होने वाली है, मेजर फाइल्स कौन सी यूज होने वाली है और उसके मेजर्स आउटपुट क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर देखिए, पहले तो टाइटल, टाइटल क्या, किसका टाइटल, सिस्टम का। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलेज पेरोल सिस्टम। एग्जाम के अंदर आपको सेम ऐसे करके आना है। देन सिस्टम, क्या सिस्टम है, पेरोल सिस्टम है। डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, D01, ये आपको देना है, ठीक है। नेम, पेरोल प्रोसेस एंड सीट नंबर 1। सो इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा डेट एंड सिग्नेचर, फाइन। नाउ दिस 4 blocks आर इट्स एम्प्टी, सो लेट अस फिल दैट वन बाय वन। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनपुट के साथ। तो जो हमने इनपुट डिस्कस किया वो आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे फाइल्स आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा आउटपुट, एंड फिर आपका फाइनली सीट जो है वो रेडी हो जाएगा। लेट्स सी, यस, सी इनपुट। जो हमने डिस्कस किया, इनपुट कौन सा टाइप के इनपुट आने वाला है भाई, किसके लिए इनपुट आने वाला है, तो मास्टर एंट्री के लिए आएगा, लीव एप्लीकेशन के लिए आएगा, नए एम्प्लॉय के डिटेल्स एंटर होगा, एरियर्स डिटेल एंटर होगा, डिडक्शंस डिटेल्स होगा, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एम्प्लॉय, पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाइज, ये सब कुछ इनपुट होगा। देन होगा प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेसेस, जैसे हमने देखा कि अटेंडेंस का प्रोसेस होगा, लीव स्टेटमेंट का प्रोसेसिंग होगा, पेरोल रजिस्टर के लिए प्रोसेसिंग होगा, बैंक स्टेटमेंट के लिए प्रोसेसिंग होगा, एंड डिडक्शन रिपोर्ट्स के लिए प्रोसेसिंग होगा, ताकि आउटपुट जो है वो ये प्रोसेस बेस पे जनरेट होगा। अब हम बात करेंगे फाइल्स, तो नेक्स्ट इज फाइल्स। सो ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिस्टम के अंदर कौन सी फाइल लगेगी भाई, एम्प्लॉय मास्टर फाइल लगेगी, अटेंडेंस फाइल लगेगी, लीव रिकॉर्ड फाइल लगेगी, लीव समरी फाइल लगेगी, एरियर्स फाइल लगेगी, डिडक्शन समरी फाइल लगेगी, एंड फाइनली करंट पेरोल फाइल लगेगी। ऑन द बेसिस ऑन दिस फाइल आउटपुट विल जनरेट। अब सिस्टम किस तरह का आउटपुट जनरेट करके देने वाला है, चलो देखते हैं। ये देखिए आउटपुट। नाउ कौन सा आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा इन टर्म्स ऑफ पे स्लिप फॉर द एम्प्लॉय, पेरोल रजिस्टर, डिडक्शन रिपोर्ट जनरेट करेगा, एम्प्लॉय के टैक्स रिपोर्ट जनरेट करेगा, मैनेजमेंट रिपोर्ट जनरेट करेगा, एंड बैंक स्टेटमेंट जनरेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल रेडी आउटपुट है। जब भी आपको पूछा जाए कि सिस्टम आउटलाइन चार्ट, तो पहले चार्ट ड्रॉ करो, और चार्ट ड्रॉ करने के बाद ये इनपुट, प्रोसेस, फाइल एंड आउटपुट आपको लिखना है पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ओके, ये हम बात कर रहे थे कॉलेज पेरोल सिस्टम के लिए। अब सपोज अगर ये हो जाता है होटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो आपको खुद से करना है ये स्टूडेंट्स, दिस इज योर असाइनमेंट। यस, इसको बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। उसके लिए क्या क्या इनपुट लगेगा, तो भाई उसके लिए इनपुट लगेगा, फॉर एग्जांपल होटल है तो पहले रूम की डिटेल्स, इनपुट में क्या आएगा, रूम आएगा, एम्प्लॉय भी आते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय डिटेल आएगा उसके अंदर भी। देन क्या आएगा आपका, फूड, ओके, होटल है तो फूड आएगा, ठीक है। देन रेस्टोरेंट की डिटेल आपको एंटर करनी होगी, मेनू का डिटेल एंटर करनी होगी। तो ये हो गया सब इनपुट्स। फिर प्रोसेस क्या होगा, रूम बुकिंग होगा, फिर फूड बुकिंग होगा,
फिर बिल जनरेट होगा, तो ये सब प्रोसेसेस हो गए। इसके अंदर कौन सी फाइल लगेगी, एक तो मेनू मास्टर आएगा, फूड मेनू मास्टर आएगा, फिर एम्प्लॉय मास्टर आएगा, उसके अंदर भी एम्प्लॉय होते हैं जैसे कि वेटर है, मैनेजर है, यस, कैशियर है। देन अटेंडेंस फाइल उसकी भी होगी, लीव रिकॉर्ड उसका भी होगा, ठीक है। और फिर फाइनल बिल होगा, बिल का फाइल होगा, होटल का होगा और रेस्टोरेंट का होगा, right? और आउटपुट, आउटपुट में क्या जनरेट होने वाला है होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो भाई उसके अंदर एक तो एम्प्लॉय का पे स्लिप भी जनरेट होगा, मेनू, कस्टमर का बिल जनरेट होगा, फिर जो रिपोर्ट है कौन से अवेलेबल रूम्स है और रेट वाइज पूरा वो जनरेट होगा। यस, तो ये हो गया आपका आउटपुट। इजंट इट वेरी इजी? बहुत ही इजी है, अच्छे से हम मार्क्स इसके अंदर गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so thank you very much for attend this second session. If you have any kind of doubt or confusion, you can approach on our group and I will definitely solve it. Thank you very much.